children, today again I Neyamat have brought to you one new chapter, that is force and pressure. This chapter belongs to class 8 science book. So children, first of all we shall discuss on force. Before starting the explanation, I would like to request you to kindly like, share my video. Also subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification in time. Children, in and around us we are observing so many things, that is so many types of movements like throwing a ball, playing with a hockey stick, pushing a car or whatever. So in all these activities, in all these actions, an external effort is applied. So this guy is applying an extra effort to hit the ball with the hockey stick. Now what is this external effort known as? This external effort is the force. This force is required to push this ball, and here also a force is applied to push this car. So to push or pull in object is called force. Now only this much, no external effort is required. तो किसी भी चीज को धकेलने में, धक्का देने में या किसी भी चीज को खींचने में एक्सटर्नल एफर्ट का जरूरत होता है, और यही है फोर्स. किसी का खींचना, किसी को ढकेलना एक्सटर्नल एफर्ट के साथ, एक्सटर्नल एफर्ट के जरिए, तो इसे हम फोर्स कहते हैं. चिल्ड्रन, फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन. नाउ व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस? सपोज अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर द कार, सो विल द कार मूव? द कार इज एट रेस्ट. कार रेस्ट पे है और वो व्यक्ति कार के सामने खड़ा हुआ है, तो क्या कार चलने लग जाएगा? नहीं, कभी नहीं. वो व्यक्ति जब तक कार के संपर्क में नहीं आएगा, until the force applied on the car cannot move. So this person will have to apply the force, and the car will move on the direction on which the force is applied. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसी डायरेक्शन में वो उस कार का मूवमेंट होगा. ठीक है, ठीक उसी तरह से जिस तरफ फोर्स अप्लाई किया जाएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसी डायरेक्शन में इस बॉल का मूवमेंट होगा. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है. मान लीजिए किसी बैल को अगर कोई खींच रहा है, ठीक है, somebody is pulling a bull. So pulling a bull, तो जिस तरफ बैल को खींचेगा बैल उसी तरफ आएगा. Children, you are familiar with the game tug of war. What happens in this game? In this game, two teams are formed and they pull at a rope in opposite direction. Each team tries to pull the rope in their own direction. The team who can pull harder wins the game. That is, they apply larger force. So the force which is applied in the direction, the things move in that direction only. Now direction words come from the quantity vector. That means force is a vector quantity. It has both magnitude and direction. So children, we have come to know that forces applied on an object in the same direction aid to one another. मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैं भी खींच रहा हूं, मेरे पीछे और भी जन लगे हुए सब खींच रहे हैं, तो एक के ऊपर एक फोर्स, सबका फोर्स ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद जो नेट फोर्स होगा उसको कैलकुलेट हम लोग करेंगे. ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते इसी तरीका का कि ये जो बॉक्स है, दो दोस्त आपस में बॉक्स को धक्का मार रहे, both the friends are pushing the box towards each other. That means in opposite direction. इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है. अगर दोनों का फोर्स इक्वल होगा, दोनों का फोर्स इक्वल है, तो नेट फोर्स जीरो आएगा. मींस to calculate net force we have to subtract the force applied by both the boys.
मतलब टोटल फोर्स कब होगा, फोर्स ऑफ दिस वन माइनस फोर्स ऑफ दिस वन, दोनों के फोर्स को माइनस कर देंगे तब हमें नेट फोर्स मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से अब इधर देख लेते हैं। इधर में एक जन इस बॉक्स को धकेल रहा था तो इसको परेशानी हुई, तो इसका फ्रेंड भी आ गया साथ में, दोनों मिलके जब धक्का दिया तो बॉक्स आगे बढ़ा। आगे बढ़ा मतलब फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ा। ठीक है, द इंक्रीज इन फोर्स resulted to move the box. So children, the strength of force is usually expressed by its magnitude. That means the force is magnitude, and we have also come to know that force is direction. That means force is both magnitude and direction. That means it is a vector quantity. Force is a quantity, force is a vector quantity. Children, force can change the state of motion. Now let's have an example first. This duster is in the state of rest. ये रेस्ट कर रहा है, रुका हुआ है. That means it is in the state of rest. ये अपने आप तो मूव नहीं करेगा, इसको हम फोर्स लगाएंगे. अब we are going to apply a force and see the duster started moving. फोर्स लगाने से डस्टर मूव कर रहा है. दूसरा बात और एक चीज है कि मैं इधर से फोर्स दे रहा हूं, उधर से भी एक फोर्स आ रहा है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, फ्रिक्शन. जो फोर्स उधर से आ रहा है रास्ते पे, जो इसको रोक रहा है, अगर मैं फोर्स अप्लाई नहीं करता हूं तो अचानक रुक जा रहा है, तो वो फोर्स जो है वो फ्रिक्शन है, और मेरा फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं मूवमेंट के लिए. ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट से हो गया स्टेट ऑफ मोशन में. तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. अगर कोई चीज रुका हुआ है तो उसका स्टेट चेंज कर सकता है. The tendency of an object to remain at rest or on motion is called inertia. हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे what is inertia, और इसके लॉज ऑफ मोशन जो है, फोर्स का जो लॉज है, जो सर आइजैक न्यूटन ने बनाया हुआ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इन लॉज के बारे में हम लोग क्लास 9 में जाकर और अच्छी तरह से जानेंगे. Children, force can also change the shape of an object. So children, see what is there in my hand. Here is a glass. एक glass है मेरे हाथ में. Now we are going to apply the force on this glass. So इस glass पे जब force मैं apply करने जाऊंगा तो देखो मैं apply कर रहा हूँ force और glass चिपटा हो रहा है. So force can change the shape of an object. Force किसी भी object का shape change कर सकता है. तो देखते नहीं हो हम लोग जब कुर्सी पर बैठते, कभी चेयर पर बैठते, तो क्या होता है, चेयर का जो सीट है वो थोड़ा दब जाता है. दैट मीन्स इट चेंजेस द शेप ऑफ दैट सीट. और उसी तरह से तुम लोग सुबह सुबह देखते होगे तुम्हारे पेरेंट्स आटा गूंथते. ठीक है, उस वक्त क्या होता है, रोटी को जब हम लोग बेलते हैं, आटा को जब बेल कर रोटी बनाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है. तो कैसे, अप्लाइंग फोर्स की वजह से, जो फोर्स हम उस पर अप्लाई करते इस वजह से. तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो चिल्ड्रन, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड टिल नाउ, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फोर्स may make an object move from rest, may change the speed of an object if it is moving. Force may change the direction of motion of an object. Force may bring about a change in the shape of an object. Force may also cause some or all of these effects. So, while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. Thus, what we came to know, that an object cannot move by itself. Now let's come to the types of forces. Force कितने तरह के होते हैं? There are two types of force. One is contact force and other is non-contact force. Contact word अपने आप में ये बता रहा है कि दो ऑब्जेक्ट जो जब आपस में मिलकर ज्वाइन होकर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो हो गया कंटेक्ट फोर्स. जैसे मान लो कि इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, इस बोर्ड पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं किसके कंटेक्ट में आया, मैं इस बोर्ड के कंटेक्ट में आया.
So this type of force is known as contact force. तो बच्चों जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स किसके एक्शन से मैंने अप्लाई किया? ठीक है, मसल्स के एक्शन से मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया. द फोर्स applied on an object due to the action of muscle is known as muscular force. ठीक है, तो muscular force है contact force, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट कंटेक्ट में आते हैं, तो इस टाइप के फोर्स को muscular force कहते हैं. सेकेंड टाइप इज नॉन कंटेक्ट फोर्स. नॉन कंटेक्ट फोर्स, यहां भी दो ऑब्जेक्ट बिना टच किए हुए फोर्स अप्लाई कर बैठते हैं. अब कैसे होता है? यू हैव सीन मैग्नेट, चुंबक को देखा है. अगर दो चुंबक को हम साथ में रख देते हैं, ठीक है, थोड़ी दूरी पर, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को इस तरह से, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस तरह से, तो क्या होगा? दोनों एक तरफ आएगा, आपस में टकराने का कोशिश करेगा. मतलब एक फोर्स है, वो फोर्स उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स द साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट. ठीक है, और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, और दोनों तरफ अगर साउथ पोल रख दिए, दोनों तरफ हम नॉर्थ पोल ही रख देते, तो वो नहीं चिपके, दूरी भागेगा, रिपेल करेगा. दिस इज नॉट इज रिपेल. ठीक है, तो सेम जो पोल है ना, वो अगर साथ में है तो रिपेल करेगा, और ऑपोजिट पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करेगा. तो इस तरह का जो फोर्स है, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज magnetic force, and this is non-contact force. Now let's take another example. Let's take the example of a straw. हमने दो straw लिया. We have rubbed one of the straws with a sheet of paper. एक straw को एक पेपर से रब कर लिया. ठीक है, रब करने के बाद पेपर हटा दिया, और जिस स्ट्रो को मैंने रब किया था, उस स्ट्रो को दूसरे स्ट्रो के पास में रख देते, टच करके नहीं, साथ में नहीं, पास में रख देते, तो क्या होगा? वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो मतलब अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी. इस टाइप का जो फोर्स होता है, ठीक है, जो रिजल्टिंग फोर्स होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इन नॉन कंटेक्ट फोर्स, वन मोर इंपॉर्टेंट फोर्स इज देयर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitational force states that every object exerts force on another object. Now we are standing on the earth. How we are standing? Due to the force exerted by the earth. ये अर्थ जो है, ये धरती जो है, हमें अपनी तरफ खींच रहा है. नहीं तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम हवा में उड़ने लगते. ठीक है, हम ऊपर की तरफ भागते. मतलब फोर्स हमें खींच रहा है, इसीलिए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं. तो ये नॉन कंटेक्ट फोर्स है. मान लो एक बॉल को मैंने उछाल दिया, मान लो कि इस मार्कर को मैंने उछाल दिया, ये मार्कर ऊपर जाकर तो नीचे आ गया. क्यों नीचे आया? धरती ने फोर्स एक्सर्ट किया, इसलिए. ओके, एंड दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. चिल्ड्रन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोर्स. नाउ व्हाट डू वी से when a force acts on an unit area? So the force when it acts on an unit area is known as pressure. चाप. ठीक है, प्रेशर. जो चाप हम कहते हैं, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो उसी तरह का चाप जो होता है वो प्रेशर कहलाता है ऑन एन यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में. तो यहां पे हम बात करेंगे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक ओनली. बाकी बाद में जब हम क्लास 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो बाकी टॉपिक पे डिस्कशन होगा. फिलहाल के लिए फोर्स का डेफिनेशन, प्रेशर का डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. So now what is the unit of pressure? So pressure, what we have seen, force by area. So force, unit of force is what? Newton. Unit of area is what? Meter square. So Newton per meter square is unit of area, which is also known as Pascal.
Now, who is Pascal? Blaise Pascal, who has derived the unit of pressure. So children, let's see what happens with the pressure. Now, first of all, we have taken 3 activities. In the first activities, I have taken one glass tube, okay, and I have put one rubber sheet at the bottom of the glass tube. मैंने एक ग्लास ट्यूब लिया और नीचे में एक रबर शीट से इसको बांध दिया, ठीक है. अब I have poured some water in the tube. मैंने इस ट्यूब के अंदर में पानी डाला, ठीक है. अब क्या हो रहा है? What is happening now? Now this rubber sheet started bulging. ये फूलना चालू कर दिया, ठीक है. जितना कम पानी था उतना कम फूला. पानी मैंने ज्यादा डाला तो ज्यादा फूला. Okay, that means what? That means the pressure exerted by water at the depth is depend on the height of the column. जितना हाइट होगा, जितना पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फूलेगा. Next activity. In this activity, we are going to show that liquids exerts pressure on the walls of the container. So what I have taken here? I have taken here a bottle. Okay, एक बोतल मैंने लिया यहाँ पे, and then I have fixed a glass rod at the side of the bottom. मतलब bottom पे नहीं, उसके साइड में, नीचे की तरफ साइड में एक ग्लास रोड फिक्स कर दिया मैंने. अब ये ग्लास रोड प्लास्टिक के बोतल में आराम से फिट हो सकता है. थोड़ा सा अगर हम गर्म कर दे और उसको डाल दे तो आराम से फिट हो सकता है. और उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे एक और चीज फिक्स किया मैंने, वो है रबर शीट ऑफ रबर मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया. नाउ आई हैव स्टार्टेड पोरिंग वाटर इन द बोतल. अब बोतल में मैं पानी डालना मैंने स्टार्ट कर दिया. आफ्टर पोरिंग वाटर, व्हाट इज seen, what is observed? It is observed that the rubber sheet started bulging. ये rubber sheet फूलना चालू हो गया. और है कहाँ पे ये? At the wall of the bottle. कंटेनर का वॉल में है. तो इससे पता चलता है कि लिक्विड्स कंटेनर का वॉल में भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर एट द वॉल ऑफ द कंटेनर. जो भी कंटेनर, यहाँ पे बोतल मैंने लिया, आप टेल्कम पाउडर का भी डब्बा से कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है. तो हमें ये पता चला कि लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर एट द वॉल ऑफ द कंटेनर. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एक्टिविटी. In the third activity, what we have done, I have taken a glass bottle, plastic bottle, and I have placed 3 glass rods. You see, उससे मैंने छेद कर दिया. ग्लास रोड नहीं भी लगाने से होगा, डायरेक्ट छेद करने से भी होगा. तो यहाँ पे ग्लास रोड छोड़ दो, डायरेक्ट छेद कर दिया. 3 होल मैंने बना दिया 3 कॉर्नर में. ओके, और एक चीज ध्यान में रखना, द होल शुड बी एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम. नीचे की तरफ से सेम हाइट पे होल होना पड़ेगा, ठीक है. अब क्या करते हैं, अब इसको मैंने एक ट्रे पे रख दिया, ठीक है. आफ्टर प्लेसिंग दिस ऑन अ ट्रे, आई हैव पोर्ड वाटर ऑन द बोतल. बोतल में मैंने पानी भरना चालू कर दिया. क्या हुआ पानी भरने से? एक साथ पानी का स्ट्रीम निकलने लगा. द स्ट्रीम स्टार्टेड फ्लोइंग एट अ टाइम. तीनों एक साथ और एट द सेम डेप्थ, ठीक है. तो इससे पता चलता है लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ. तीनों का प्रेशर सेम था, तीनों का रफ्तार सेम है, ठीक है. तो लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, ये हमें मालूम चल गया. सो दिस वाज अबाउट द लिक्विड. व्हाट अबाउट द गैस? एक बैलून को अगर हम उसके अंदर हवा भर देते हैं और एक छेद कर देते हैं, there will be one hole on the balloon. What happens? Will we able to inflate the balloon? No. बैलून को हम ठीक तरह से फुला नहीं सकेंगे क्योंकि उस छेद से वो हवा पास हो रहा है. प्रेशर इतना है कि वो पास हो रहा है. तो क्या हो रहा है, इसमें भी सेम केस. गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर्स एट द वॉल ऑफ द कंटेनर. सेम केस हो रहा है जो लिक्विड में था, वही गैसेस में हो रहा है. वी ऑल नो दैट द एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेयर. So the pressure exerted by this atmosphere is known as atmospheric pressure. Now we also know that pressure is force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it
filled with air, then the weight of the air in this cylinder is the atmospheric pressure. Let us take another example. Let us take a good quality rubber sucker. It looks like a small rubber cup. Now let's press it hard on a smooth plain surface. When we press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out, and the sucker sticks to the surface because the pressure of the atmosphere acts on it. Now, to pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. So there must be air. Then only the sucker would be pulled. Okay. Otherwise, no one can pull the sucker from the surface of the planes. Understood? So this was about the force and pressure chapter. Hope you have understood. Give your comments in the comment box so that I can prepare a new video for you all. With this, I am ending today's session. So before ending the session, I would like to request you again to like and share my video. Also, till date, if you have not subscribed, do subscribe my YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification in proper time. So children, thank you for today.